kids, welcome to grade 9 history class. In today's class we're going to discuss chapter number 8 which is clothing a social history and आज का जो session है वो है session number 4. So in this session we'll start discussing about new materials. Before the 17th century, most ordinary women in Britain possessed very few clothes made of flax, linen or wool, which were difficult to clean. तो बिफोर 17th सेंचुरी मोस्ट ऑर्डिनरी वुमेन जो थी ब्रिटेन में वो उनके पास होते थे बहुत कम क्लोथ्स होते थे जो बने होते थे फ्लैक्स से, लिनन से या वूल से, और जिनको साफ करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है. तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से वहाँ पे न्यू मटेरियल्स आना शुरू हुए. After 1600, trade with India brought cheap, beautiful, and easy to maintain Indian shinties within the reach of many Europeans who could now increase the size of their wardrobes. So, after 1600, जो इंडिया के साथ ट्रेड शुरू हुआ उससे काफ़ी वहाँ के हिसाब से अगर वो लोग देखते तो काफ़ी चीप था, ब्यूटीफुल था, ऑल्सो ईजी टू मेंटेन. जो इंडियन शिंटेस थे वो उनके पास गया, उनकी रीच में आया. मैनी जो यूरोपियंस थे अब उनके पास they can now increase the size of their wardrobe because they had a new material जिसके साथ they can have more clothes. Then during the Industrial Revolution in the 19th century, Britain began the mass manufacture of cotton textile which is exported to many parts of the world including India. फिर उसके बाद जो चेंज आया वो ये था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम 19th सेंचुरी में ब्रिटेन ने शुरू किया मास मैन्युफैक्चर कॉटन टेक्सटाइल्स का, और जिसको दैट गॉट एक्सपोर्टेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और इंक्लूडिंग इंडिया भी वो एक्सपोर्ट हुआ. Cotton clothes became more accessible to a wider section of people in Europe. By the early 20th century, artificial fibers made clothes cheaper still and easier to wash and maintain. तो जो cotton clothes थे वो बहुत accessible हो गए to a wider section of people in Europe. तो काफ़ी लोगों को मिलने लगे. इट वॉजंट कि वो कुछ ही लोगों के लिए थे, जैसे कुछ क्लोथ्स थे जो रिच पीपल अफोर्ड कर पाते थे, बट जो कॉटन था वो जो है वो वाइडर लोगों के पास पहुंचा, उसकी एक्सेसिबिलिटी हुई. बाय द अर्ली 20th सेंचुरी आर्टिफिशियल जो फाइबर्स थे दे मेड क्लोथ्स चीपर जो थे वो बने, क्योंकि वो आर्टिफिशियल जो फाइबर्स थे उससे बन रहे थे एंड वो थे इजी टू वॉश एंड मेंटेन. तो हम लोग भी देखें, अगर हम लोग देखें कि कॉटन थोड़ा मुश्किल होता है टू क्लीन टू मेंटेन, एंड अगर पॉलिस्टर एंड ऑल वो सारे क्लोथ्स रहते हैं, वो मटेरियल रहता है, तो दैट इज वेरी इजी टू वॉश एंड कीप इट एंड यू डोंट नीड टू आयरन इट. तो कुछ कपड़े जो ऐसे होते हैं, जो मटेरियल जो ऐसे होते हैं which are easy to maintain and some are little difficult to clean and also maintain. In the late 1870s, heavy restrictive underclothes which had created such a storm in the pages of women's magazines were gradually discarded. Clothes got lighter, shorter and simpler. Late 1870s में heavy restrictive जो underclothes थे जिन्होंने बहुत वहाँ पे स्टॉर्म क्रिएट करा था, जो मैगजीन पेजेस थे उसमें, वो धीरे धीरे उनको डिस्कार्ड कर दिया गया. क्लोथ्स जो अब थे, जो नया मटेरियल यूज किया जाने लगा, जो चेंजेस आए क्लोथिंग स्टाइल में एंड द वे मटेरियल वाज यूज्ड, उससे जो क्लोथ्स थे वो लाइट होने लगे, शॉर्ट होने लगे एंड ऑल्सो वेरी सिंपल. द वे दे वर मेड वो बहुत सिंपल था. Yet until 1914 clothes were ankle length as they had been since the 13th century. By 1915 however the hemline of the skirt rose dramatically to mid calf. Yet जो until 1914 था clothes जो थे वो ankle length के थे, तो वो लंबे clothes तब भी पहने जाते थे. जो रहा था since 13th century से, तो वही जो लेंथ थी वो यूज की जाती थी. However, by 1915 तक आते आते जो हेम लाइन है स्कर्ट की वो ड्रामेटिकली वो कम हो गई और वो मिड काफ तक पहुंच गई. Changes in women's clothing came about as a result of two world wars. Many European women stopped wearing jewelry and luxurious clothes. As upper class women mixed with other classes, social barriers were eroded and women began to dress in similar ways. Now, clothes जो थे women के उसमें changes आए because of the two world wars, so काफ़ी सारे उसकी वजह से changes आए. Many European women जो थी उन्होंने बंद कर दिया जो ज्वेलरी एंड लग्जरियस क्लोथ्स पहनती थी because of the two world wars. उसमें changes आए. As upper class
जो वुमेन थी वो मिक्स हुई विद अदर क्लासेस, तो उन्होंने जो लोअर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उनसे उन्होंने मिंगल होना शुरू किया। तो इससे जो सोशल बैरियर्स थे वो हट गए, एंड वुमेन जो हैं सारी वो ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से ड्रेस करने लगी। Clothes got shorter during the First World War out of practical necessity. By 1917, over 700,000 women in Britain were employed in ammunition factories. So क्लोथ्स जो है वो छोटे हो गए ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बिकॉज वो प्रैक्टिकल नेसेसिटी थी, बिकॉज वहाँ पे उनको काम करना था। क्योंकि बाय 1917 हम लोग देख रहे हैं कि 700,000 वुमेन जो थी ब्रिटेन में वो एम्प्लॉयड थी एम्यूनिशन फैक्ट्रीज में। तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम बिकॉज दे वर वर्किंग इन दैट एटमॉस्फेयर, तो वो उस तरीके के लंबे क्लोथ्स और वो सब नहीं पहन सकते थे। तो आउट ऑफ प्रैक्टिकल नेसेसिटी जो क्लोथ्स हैं वो शॉर्टर हुए। They wore a working uniform of blouse and trousers with accessories such as scarves, which was later replaced by khaki overalls and caps. Bright colors faded from sight, and only sober colors were worn as the war dragged on. जो वुमेन थी उन्होंने वर्किंग यूनिफॉर्म जो थी वो पहनना शुरू करी, बिकॉज दे वो वर्किंग, तो वो ब्लाउज एंड ट्राउजर्स पहनती थी। और जो एक्सेसरी वो यूज करती थी, नाउ दे वर नो एक्सेसरीज डिफरेंट फ्रॉम दे वर यूजिंग ज्वेलरी एंड ऑल, सो नाउ दे वर यूजिंग स्कार। जो भी बाद में वो रिप्लेस होके देन इट बिकेम खाकी ओवरऑल्स जो होते हैं वो हो गया, और उसके साथ वो दे यूज टू वेयर कैप्स। ब्राइट कलर्स जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाने लगे, लोग ने कम पहनना शुरू कर दिया ब्राइट कलर्स को, और ओनली जो सोबर कलर्स थे वो पहनना शुरू कर दिया। जैसे जैसे जो वॉर थी वो चलना शुरू हुआ, वॉर जिस तरीके से ड्रैग हो रही थी, तो वैसे वैसे जो कलर थे वो कम होते गए लोगों के, एंड वो केवल सोबर कलर्स पहनना शुरू कर दिया। Thus, clothes became plainer and simpler. Skirts became shorter. Soon, trousers became a vital part of Western women's clothing, giving them greater freedom of movement. Most important, women took to cutting their hair short for convenience. जो क्लोथ्स थे वो धीरे धीरे सिंपल होने लगे एंड प्लेन होने लगे, जैसे जैसे वॉर की वजह से उसमें चेंजेस आए। स्कर्ट्स जो है वो शॉर्टर हो गई। सून जो ट्राउजर्स थे वो एक जो वुमेन क्लोथिंग थी, वेस्टर्न वुमेन की क्लोथिंग, उसके एक वाइटल पार्ट हो गई, बहुत ज़रूरी उनके लिए वो रहने लगा, बिकॉज वो अब काम कर रहे थे, तो इसके लिए उनको वो फ्रीडम की ज़रूरत थी। तो बिकॉज ऑफ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तो उन लोगों ने अब जो स्कर्ट्स थी उनकी शॉर्टर होने लगी, ट्राउजर्स थे वो पहनने लगे ट्राउजर्स रादर देन लॉन्ग क्लोथ्स। फिर सबसे ज़्यादा जो था ज़रूरी ये हुआ कि वुमेन ने अपने जो हेयर है उनको शॉर्ट करना शुरू करा, बिकॉज ऑल दीज चेंजेस आए, वेरी प्रैक्टिकल चेंजेस आए इन सारे क्लोथिंग में एंड द वे दे ड्रेस की, बिकॉज दे वर वर्किंग, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर वो केयर नहीं कर सकते थे, एंड इट वाज प्रैक्टिकल कि वो अपने हेयर कट कर ले। एंड देन ऑल्सो द चेंजेस दैट वी सी कि यहाँ पे स्कर्ट्स जो हैं वो छोटे हुए, या ट्राउजर्स हैं वो पहनना शुरू किया उन्होंने, दैट बिकेम अ वाइटल पार्ट। It's all because of the practical necessity, because of the way now their lives were. By the 20th century, a plain and austere style came to reflect seriousness and professionalism. New schools for children emphasized the importance of plain dressing and discouraged ornamentation. तो by the 20th century हम लोग देखेंगे कि plain जो कपड़े हैं उस तरीके के स्टाइल जो है वो आगे ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट लेने लगे, कि अब ज़्यादा लोग सीरियस होते थे या फिर प्रोफेशनलिज्म इससे शो होता था। सो दैट इज़ वाई जो कलर थे वो सोबर कलर से चेंज हुए, एंड जो स्कूल्स थे नाउ वो एम्फोसाइज करने लगे कि बच्चों को ये इम्पोर्टेंस बताएं कि प्लेन ड्रेसिंग क्यों करनी चाहिए, एंड किस तरीके से जो ज्वेलरी एंड ऑल है, जो एक्सेसरीज हैं, उनको डिस्करेज करना चाहिए। Gymnastics and games entered the school curriculum for women. As women took to sports, they had to wear clothes that did not hamper movement. When they went out to work, they needed clothes that were comfortable and convenient. Now, gymnastic जो था and जो बहुत सारे games थे, उसमें स्कूल थे वुमेन के, उनके करिकुलम में वो स्टार्ट हुए। तो वो जो
जिम्नास्टिक है एंड अदर गेम्स उनके करिकुलम में आया, सो वुमेन हैव टू डू इट। एंड नाउ व्हेन दे वर डूइंग द स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स ज्वाइन कर रहे थे, तो फिर उनको क्लोथ्स ऐसे पहनने पड़ेंगे। जिम्नास्टिक अगर आप लोगों ने देखा हो बच्चों, तो जिम्नास्टिक में आप ऐसे कोई कपड़े नहीं पहन सकते कि दैट विल हिंडर इन योर मूवमेंट, तो आप मूवमेंट को हैम्पर नहीं कर सकते उसमें। सो दैट इज वाई देन उनको वो क्लोथ्स हैं जो जो जिम्नास्टिक के लिए सुटेबल है, और एनी अदर गेम, तो उनको वो क्लोथ्स पहनने पड़े। एंड जब वो काम करने के लिए जाते थे तो उनको ऐसे क्लोथ्स की जरूरत होती थी जो कंफर्टेबल हो और कन्वीनियंट हो, बिकॉज दे हैड टू वर्क लॉन्ग आवर्स। सो दैट इज वाई जो क्लोथिंग स्टाइल था इस तरीके से चेंज हुआ, बिकॉज जो प्रैक्टिकल उनको जरूरतें थी, स्कूल में अगर स्पोर्ट्स खेलेंगे, सो दे नीड अ सर्टेन काइंड ऑफ क्लोथ्स, एंड इफ दे हैव टू वर्क दे नीड द कंफर्टेबल जो हो क्लोथ्स, उसमें वो पहने, एंड ऑल्सो उनको कन्वीनियंट होने चाहिए। सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन अबाउट किस तरीके से हम लोगों ने देखा कि क्लोथिंग स्टाइल जो है वो चेंज हुआ। लॉन्ग जो क्लोथ्स पहनते थे पहले, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो शॉर्ट हुए, और हम लोगों ने देखा किस तरीके से वो प्रैक्टिकल नेसेसिटी की वजह से ये सारी चीजें जो है चेंज हुई क्लोथिंग स्टाइल में। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू।